Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss JEE Mains 2024 paper and it's 30th of January morning session. So let's start our discussion. पहला क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 turns a piece of paper dipped in lead acetate into black. It is a confirmatory test for sulfide ion. तो होता क्या है? H2 माइनस है आपके पास सल्फाइड आयन and this is what you put dilute H2SO4. So in that case formation of H2S takes place, which in the presence of lead acetate PbCH3 COO whole twice it forms PbS. Because of that particular paper turns black because of the formation of PbS, that is lead sulfide. Statement 2 क्या कहता है? देखो, in statement 1 the color of paper turns black because of the formation of lead sulfide. No, it's not T, it's lead sulfide. So option 1 is correct. That means statement 1 is correct and statement 2 is false. So this is statement 1 is true, but statement 2 is false. Option number 3 will be our right answer. See, this particular question was from this PDF. सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एनसीईआरटी में है, आप ऐसे भी गूगल कर सकते हो. सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एनसीईआरटी पीडीएफ. क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट, राइट? सो यू मस्ट रीड दैट. अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आप जरूर उसको पढ़िए फॉर एप्रिल सेशन. दैट्स माय एडवाइस. सो यू सी हियर Na2S plus H2SO4, that is giving you Na2SO4 plus H2S, and that is this lead acetate reacting with H2S giving you what? Lead sulfide. That is what? Black precipitate. Now moving to the next one. Given below are two statement. Okay, I think there is some problem with this question. This reduction reaction is known as, there is no statement here, just see the reaction. This is PaCOCl H2PdBaSO4, right? So here it is what? Rosenmund reduction, Lindlar's catalyst है. So answer क्या होगा आपका? First होगा. Now next question number 3. Sugar which does not give reddish brown precipitate with Felling reagent, right? तो वो जो CO2O का precipitate है वो नहीं बनाता है. That means what? Non reducing sugar है. अब non reducing sugar सारे के सारे monosaccharide reducing है. Disaccharide में आपका maltose और lactose reducing है. Sucrose क्या है? Non reducing. और polysaccharide सारे non reducing. तो ढूंढ लो. Glucose monosaccharide है reducing, lactose maltose reducing and sucrose is non reducing. तो ये आपका reddish brown precipitate नहीं देगा, right? Felling के साथ. तो option number 1 will be the right answer. Let's move to the next question. Given below are the two statement. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion क्या कहता है? There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from AS to Bi, only a small increase in covalent radius is observed. That's true. देखो, एस से जब बीआई पे जाओगे बेसिकली तो उसके पहले क्या होगा? लैंथेनॉइड. और लैंथेनॉइड में तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? एफ में. और एफ की सील्डिंग क्या होती है? बहुत ही पुअर होती है. तो उसकी वजह से उतना नहीं बढ़ना चाहिए रेडियस जितना बढ़ता है, तो कम ही बढ़ता है. दैट मीन्स व्हाट? देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ. नाउ यू सी रीजन व्हाट इज गिवन. कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप तो रेडियस इंक्रीज करेगा. बट रीजन इज करेक्ट, बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? इट इज ड्यू टू व्हाट? द पुअर शील्डिंग. So in this case both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option number 2 will be our right answer. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उससे पहले देख लो एक बार, थोड़ा सा रेफरेंस देख लो पी ब्लॉक का. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन उन्होंने लिया है ना, पी ब्लॉक से लिया है. तो वैसे पी ब्लॉक अब आज के एनसीईआरटी में नहीं है, राइट? बट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. एंड ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली पी ब्लॉक से लिया गया था. अगर देखोगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 इन ओल्डर एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1, देयर यू विल सी. देखो स्टेटमेंट भी देखो, पढ़ो यहाँ पे. कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस इज in down the group, in size down the group. There is a considerable increase in covalent radius from N to P. However, from AS to Bi, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled D or F orbital in heavier members. और poor shielding की वजह से, right? Electrons जो उसमें होते हैं. So this was the reference. Now moving to the next question. Which of the following molecule species is most stable? So यहाँ पे ध्यान से देखो.
दिस वन इज योर एरोमेटिक, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस वन इज ऑल्सो व्हाट एंटी एरोमेटिक, एंड दिस वन इज व्हाट नॉन एरोमेटिक. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. डायमैग्नेटिक लैंथेनॉइड आयंस आर, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? Nd3 प्लस Eu3 प्लस La3 प्लस एंड C4 प्लस. La कितना होता है? 57 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 54. C कितना होता है? 58, 4 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 54. दैट इज लाइक व्हाट? जेनन. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर. बाकी का भी लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इन दैट केस यू विल नॉट गेट, मींस दे विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Aluminium chloride acidified aqua solution forms an ion having geometry. तो देखो ये क्या बनाता है? It forms AlH2O6 3+. So it forms what? Octahedral. Octahedral geometry. So option number 1 will be the right answer. ये भी directly NCERT से था, अगर मैं आपको दिखाऊं P block, but 11th वाले P block से है. 11th में जो P block है second book में, यहाँ पे देखो this is what? Aluminium chloride in acidified aqueous solution forms octahedral ion, right? So from these lines they put this question. Next question number 8. Statement 1 क्या बोल रहा है? The orbitals having same energy are called as degenerate orbital. This is, it's a true statement. In hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals. No, they are degenerate orbitals. In fact, hydrogen atom में क्या होता है? The energy only depends on what the principal quantum number, because it is what? One electron system. For one electron system, energy केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, L पे डिपेंड नहीं करती है. तो इसका मतलब एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1s, then 2s is equals to what? 2p, then 3s is equals to 3p and is equals to 3d. So they are not degenerate. No, they are actually degenerate. Their energy is same because the n value is same. Right, and it's what? One electron system. तो ये तो गलत है. Statement 2 is false and statement 1 is true. So statement 1 is true and statement 2 is false. So option number 1 will be the right answer. Moving to question number 9. Example of vinylic halide. तो vinylic halide क्या हो जाएगा आपका? C double bond C and this is what? यहाँ पे क्या जुड़ा हो? X जुड़ा हो. ठीक है, तो ढूंढो विनाइलिक हैलाइड. यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और इससे क्या जुड़ा हो? X. तो ये हो जाएगा. ये तो एराइल हैलाइड है, ये नहीं होगा. और यहाँ पे क्या है? ये एलाइल हैलाइड है ना. दिस इज अराइल एंड दिस इज व्हाट? अलाइल. C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड इससे क्या जुड़ा हो? X. तो ये तो एलाइलिक ग्रुप हो गया. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? एलाइलिक. और ये भी क्या है आपका? एलाइलिक है. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर विनाइलिक हैलाइड, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. स्ट्रक्चर ऑफ 4-methyl pent2-enal. पेंट पहले वर्ड रूट उठा लेते हैं, तो 5 कार्बन हो गए. एल्डिहाइड इज व्हाट? द प्राइम फंक्शनल ग्रुप. तो यहां पे C डबल बॉन्ड हो, H कर लो. अब यहीं से नंबरिंग कर लेंगे. सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 2, तो यहां पे डबल बॉन्ड डाल दो एंड देन फोर्थ पोजीशन पे क्या कर दो? मिथाइल जोड़ दो. तो यहां पे मिथाइल, बाकी हाइड्रोजन वगैरह लगा दो कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखते हुए. तो H, यहाँ पे भी एक H आ जाएगा, यहाँ पे भी एक H आ जाएगा. ढूंढ लो. CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज व्हाट? C डबल बॉन्ड O H. CH3 से भी देख सकते हो, नहीं, फोर्थ पोजीशन पे. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? BrF5 दे रखा है आपको, H2O, ClF3 और SF4 दे रखा है. स्ट्रक्चर बनाना है, बनाते हैं. Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 5 वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा. सो इट विल बी लाइक दिस. ये लोन पेयर हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एंड दिस इज व्हाट? फ्लोरीन. सो दिस इज स्क्वायर पिरामिड, राइट. तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा. तो A का क्या हो गया? 4. अब A का 4 देखो तो एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता. बाकी भी देख लेते हैं. H2O क्या होता है आपका? ये तो पता है आपको. H2O क्या होता है? बेंट होता है, V शेप होता है या फिर एंगुलर. तो H2O इज व्हाट? बेंट. दैट मींस B इज व्हाट? 3. ClF3, ClF3 क्या होगा? क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 लोन पेयर, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ. सो दिस इज व्हाट? T शेप. सो ClF3 इज व्हाट? T शेप. सो C का 1 हो जाएगा. एंड SF4, SF4 को देखो
तो SF4 में क्या होगा, एक लोन पेयर, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F, घुमा दो सीसॉ, सो D का 2। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है ये, द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखो पहले इसका रिएक्शन करा लो, Mg ईथर से तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, सो इट विल फॉर्म व्हाट, PH MgBr। फिर इसका रिएक्शन CO2 के साथ कर दो, तो प्लस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट। सो PH माइनस विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन और ये बॉन्ड खुल जाएगा, सो इट विल फॉर्म व्हाट, PHC, दिस इज O माइनस डबल बॉन्ड O और इससे MgBr जाके चिपक जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या दे देना है आपको, H प्लस, सो इट विल फॉर्म व्हाट, बेंजोइक एसिड। यहां पे बेंजोइक एसिड बन गया है। अब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन वो किससे करा रहे हैं, NH3 के साथ। सो NH3 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा, सो इट विल फॉर्म व्हाट, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड NH4 प्लस। व्हेन यू विल हीट, वाटर निकल जाएगा यहां से एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, PHCO NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया। तो यहां तक तो आया। उसके बाद क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, सो बस यहां से CO हटा दो तो इट विल फॉर्म व्हाट, PHNH2। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर, you know, this particular option will be our right answer. Now moving to question number 13. In the given reaction, identify the reagent A and B. So this is basically what, CH3 से हमें क्या बनाना है, टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन है, सो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड, सो दिस इज व्हाट, B क्या हो जाएगा आपका, CrO2 Cl2। इंटरमीडिएट भी यहाँ पे बनता है, आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बनता है इंटरमीडिएट, देखो तो बनाने का तरीका है, देखो CH कर लो, यहाँ से 2H जोड़ दो, ठीक है, 2H जोड़ दिया। अब क्रोमाइल क्लोराइड बनाओ, क्रोमाइल क्लोराइड में क्या करो, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट Cl एंड दिस इज व्हाट Cl, ठीक है। अब क्या करो, इस H को यहां शिफ्ट कर दो और एक बॉन्ड हटा दो, तो ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया और यहां पे H आ गया। तो इसको मैं हटा रहा हूं पहले, तो देखो ऐसे कर रहा हूं, यहां पे एक H को इस O से मैंने शिफ्ट कर दिया और अब क्या करना है, इस O को एक बॉन्ड इस कार्बन से जोड़ दो इसको, सो दिस विल बिकम व्हाट, यही सेम काम यहां भी हो जाएगा, एक O इस Cr के OH पे चला जाएगा और एक H इस CH से यहाँ पे O पे चला जाएगा, Cr के O पे, और दूसरा वाला O इससे कनेक्ट हो जाएगा एंड देन इट इज व्हाट, ClCl। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PH CH एंड देन व्हाट, OCrOH Cl2 होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट द इंटरमीडिएट। फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाना ज़्यादा आसान है, इट इज़ व्हाट CH और एसीटेट आयन जो जोड़ दो, OCO CH3 होल ट्वाइस, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, इस केस में A नहीं बताया मैंने आपको, दिस इज व्हाट CrO3, सो A इज CrO3 एंड B इज व्हाट CrO2 Cl2, सो कौन सा आंसर हो जाएगा, A CrO3 एंड B इज CrO2 Cl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as what, reason। क्या बोल रहा है ये, this is what your allylic halide, तो ये तो सही है, it's an example of allylic halide। reason क्या दे रहा है, allylic halides are the compounds in which the halogen atom is attached to sp2 hybridized, no it is sp3। अगर आप देखो तो ये वाला जो कार्बन है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, so it's what sp3, तो रीजन तो गलत है, that means रीजन is false, तो वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, तो A is true but R is false। Let's move to the next question. Question number 15. What happens to freezing point of benzene when a small quantity of naphthalene is added to benzene? तो तुमने एक naphthalene ऐड किया है, राइट। अब naphthalene ऐड करोगे तो freezing point में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, राइट, डिप्रेशन इन freezing point, so it will what, decrease। freezing point पूछ रहा है ना, तो freezing point में डिप्रेशन होगा, boiling point रहता है तो elevation, like that, so ये डिक्रीज हो जाएगा freezing point। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, स्पीसीज है
और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो देखो Cr का क्या होता है 24, 4s1 3d5, एक तो S से निकालोगे एक D से निकाल दो तो 3d4 हो जाएगा। 3d4 कहीं दिख रहा है, A का थर्ड एक ही ऑप्शन है तो सेकंड होगा, बाकी भी चेक कर लेते हैं। Mn प्लस है तो Mn होता कितना है 4s2 3d5, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 3d5, सो दिस इज व्हाट योर Mn प्लस। Ni प्लस 2 4s2 3d8, दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d8 बन गया, 28 होता है। और V वेनेडियम क्या होता है 23, तो 4s2 3d3, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s1 3d3 हो जाएगा। सो दिस विल बी दिस। एक बार मैच कर लेते हैं, A का थर्ड है, ठीक है। B का क्या है फोर्थ, B का फोर्थ है, C का क्या है 1 और D का क्या है 2। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंपाउंड A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट्स विथ B। ओके, A जो इससे फॉर्म हो रहा है तो वो B से रिएक्ट करके ये बना रहा है, दैट इज व्हाट योर C। तो ये आपका C है, आपको A और B बताना है। तो A देख लेते हैं, देखो ये टर्मिनल एल्काइन है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट विल फॉर्म व्हाट CH3, देन व्हाट C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। ऑप्शन में नहीं है, हमें वैसे भी प्रोडक्ट बताना है, राइट। H2 will be a side product, you can say. So this is CH3, C triple bond C minus and Na plus. So कौन कौन ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। मैं बार बार ऐसे क्यों करता हूँ, बिकॉज यू नो यू डेवलप दिस स्किल सेट ऑल्सो, समटाइम्स इट वर्क्स स्पेशली इन वॉट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन, एटलीस्ट आई मीन सिंगल चॉइस में ज़्यादा ये होता है, हेल्पफुल होता है कि आप क्या करो, मल्टीपल चॉइस में तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, सॉरी, सिंगल चॉइस में ही ये क्या करोगे, एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। मल्टीपल चॉइस में भी अगर एक से ज़्यादा अगर तुम्हें भरने हैं तब तो बहुत ही मुश्किल होगा, राइट, जैसे एडवांस में से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, ए ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ, राइट, यही दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद क्या है आपका, बी से रिएक्शन करके आपने ये बनाया है, राइट। तो देखो यहां पे अगर तुम x जोड़ दो, नहीं तो ये C माइनस इस पे अटैक करेगा और ये x निकल जाएगा, सो इट विल बी व्हाट CH3 CH2 CH2 Br। तो ये तो होगा नहीं, यही एक बचता है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक किया, Br निकल गया, प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, आइडेंटिफाई रिएजेंट A एंड B। अब यहां पे तुम्हारे पास एनिलीन है, उससे क्या बना रहे हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा NaNO2 HCl, A क्या बन जाएगा NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, HNO2 भी हो सकता है, सो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, सेकेंड में वो बोल रहा है कि B से ये स्कारलेट रेड डाई देता है, राइट। देखो फिनॉल तो तुम्हें क्या देगा, फिनॉल में O है तो ऑरेंज डाई देता है, एनिलीन क्या देता है, येलो देता है, राइट। एंड दिस इज व्हाट योर बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल आपको क्या करेगा, देखो यहां पे बस ये है आपके पास PH N2 प्लस Cl माइनस, और इसमें अगर आपने बीटा नेफ्थॉल ऐड किया, बीटा नेफ्थॉल, सो व्हाट विल फॉर्म, देखो यहां पे या 2 नेफ्थॉल भी बोल सकते हो, सो हियर इट विल फॉर्म व्हाट N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज PH। So because of that you get what, scarlet red dye। तो याद रखना, रॉय करके याद रख सकते हो, रॉय। ऑरेंज किसके केस में, फिनॉल, येलो किस केस में, एनिलीन, एंड रेड बीटा नेफ्थॉल के केस में। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the lysine extract is boiled with dilute HNO3 before testing for halogens because, देखो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या होता है Na2S जो सल्फाइड और साइनाइड बनता है, दे आर डिकम्पोज्ड बाय व्हाट HNO3, सो दैट जब उसका हम लोग AgNO3 से रिएक्शन कराएं तो ये जो आयंस हैं ये बेसिकली क्या करें, उसको अफेक्ट ना करें। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। दिस वाज द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। अगर आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, सो इट इज व्हाट रिटन आल्सो, यू सी हियर, if nitrogen or sulfur is also present in the compound, the sodium fusion extract is first boiled with concentrated nitric acid to decompose cyanide or sulfide of sodium formed during lysine test. These ions would otherwise interfere with silver nitrate test for what, AgNO3 test for what, halogens. So from this particular paragraph they made the previous question, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4।
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इथेन 1,2-diamine इज अ चिलेटिंग लिगेंड, बाइडेंटेट है, चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक. मेटेलिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट. देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेटलर्जी तो था ही नहीं, पूछ लिया इन्होंने. इनफैक्ट इवन इफ यू डोंट नो दिस, राइट, यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैसे? देखो, सपोज यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता है, आप मेटलर्जी करके नहीं गए हो, राइट, छोड़ दो इसको. ए अगर है तो ये तो कंफर्म है ना, ए इज करेक्ट, तो फर्स्ट नहीं हो सकता है और सेकंड नहीं हो सकता है, ठीक है. इसका मतलब अब आगे देखते हैं. साइनाइड आयन इज यूज्ड एज लीगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर, ये भी आपको मान लो नहीं पता है, राइट. Phosphine acts as a ligand in Wilkinson catalyst. No, it's not phosphine, it is triphenyl phosphine, right? So D is incorrect. तो अगर D चला गया तो ये भी चला गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे. अब मैं बता देता हूं आपको, ये तो सही है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. एंड cyanide ion is used as ligand for leaching of silver, right? So this is also a true statement. गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसका. The stability constant of Ca+2 and Mg+2 are similar with EDTA complexes. No, they are not similar. In fact, Ca+2 के लिए जो stability constant होता है, इसका जो K value होता है, formation constant, that is more than what Mg+2. Size बड़ा है, right? So it stabilizes more that complex. So option number 3 will be the right answer for this question. Now we are moving to integer based questions. चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिया हुआ है आपका, ये रेट दिया हुआ है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, K इंटू CA होता है, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट 10 मिनट एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन. आपको हाफ लाइफ बताना है. किसी तरह से अगर हम K निकाल ले तो हाफ लाइफ निकल जाएगा, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है ना. सो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, ln2 बाई टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 बाई K. सो अब पूरा का पूरा फोकस जो हमारा होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, K पे होना चाहिए, रेट कांस्टेंट पे. एक बार फर्स्ट ऑर्डर देखो. फर्स्ट ऑर्डर में एक आपने पढ़ा होगा ln CA0 बाई CA इज इक्वल्स टू KT, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, CA इज इक्वल्स टू CA0 इंटू ई टू द पावर KT कर दो, और CA को इधर ले जाओ, ई टू द पावर KT इधर ले आओ, तो वो क्या बन जाएगा, CA0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT. This is what the formula which we are going to use. And rate of reaction at any point क्या है, rate constant into concentration at that particular point of time. और concentration of at a particular point of time क्या हो जाएगा, initial concentration into e to the power minus KT. So पहले हम लोग इसको थोड़ा साइड कर लें, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं यहां से. फर्स्ट वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पॉइंट पे 0.04 है. सो दे आर बेसिकली व्हाट, K इंटू CA, और CA क्या हो जाएगा, CA0 इंटू ई टू द पावर माइनस K इंटू T, और T कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स, तो K इंटू क्या कर दो, 10 कर दो. नेक्स्ट हमें क्या देखना है, दूसरे वाले केस में देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 0.03, तो वो क्या होगा उस पॉइंट पे K इंटू CA, अब उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो K इंटू CA0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT. सो अगेन K इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉट एवर इट इज, कैंसिल आउट हो जाएगा. अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एंड ई टू द पावर माइनस K इंटू व्हाट्स द टाइम, 20 मिनट. अब क्या करो, आप इसको इससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इससे डिवाइड कर दो, तो ये तो क्या बन गया, 4/3 बन गया. नहीं, दिस इज व्हाट सपोज इक्वेशन 1, दिस इज सपोज इक्वेशन 2. हम 1 को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो 4/3 बन गया. यहां पे क्या हो गया, K कैंसिल आउट हो जाएगा, CA0 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पे ऊपर में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस K इंटू 10, और अपॉन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस K इंटू 20. नहीं, अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ln 4/3, एंड दिस विल बिकम व्हाट, ln ऊपर जाके जाएगा 20K हो जाएगा माइनस 10K, सो इट विल बिकम व्हाट, ई टू द पावर 10K. और अब दोनों तरफ लॉन ले लीजिए, तो दिस विल बिकम ln 4/3 इज इक्वल्स टू ln e टू द पावर 10K. ln e तो 1, 10K बाहर ले लो, सो दिस विल बी ln 4/3 इज इक्वल्स टू 10K. ये आ गया आपका.
तो यहां से k की वैल्यू आ गई ना, अभी तक k की वैल्यू आई है, अभी तक आपकी k की वैल्यू आई है, तो k यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी ln 4/3 डिवाइडेड बाई 10. नाउ पुट दैट हियर, यहां पे k कर दो पुट, तो उससे क्या आ जाएगा, t हाफ आ जाएगा. हमें t हाफ निकालना है, तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, यहीं पे कर देता हूं कैलकुलेशन. देखो t हाफ क्या हो जाएगा, देखो t हाफ इज इक्वल्स टू ln 2 बाई ln 4/3, और जो ये 10 आएगा वो 10 कहीं ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सही कर रहा हूं ना, ln 4/3 अपॉन 10. हाँ, सो ln 2, अब इसको मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे लॉग कर देता हूं. 2.303 का फैक्टर आएगा, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे. और log 2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो इसको ऐसे अगर समझना है तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, log 2 अपॉन, और log 4/3 को log 4 माइनस log 3 कर दिया. ln को log से क्यों रिप्लेस किया, ln 2 को लिख सकते हो 2.303 log 2, और ln 4/3 को लिख सकते हो 2.303 log 4/3. 2.303 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज log 2 अपॉन log 4 माइनस log 3 इंटू 10. सो log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3010 अपॉन log 4 की वैल्यू दे रखी है, log 4 नहीं दे रखी है तो कोई नहीं, इसको डबल कर लो, 2 log 2 कर लो, तो 0.6020 माइनस log 3 दैट इज 0.4771 एंड इनटू क्या हो जाएगा 10. दिस विल बी व्हाट योर टी हाफ. और ये टी हाफ किस में आएगा आपका, मिनट में. टाइम तो हम मिनट में ही डील कर रहे हैं, इवन आंसर जो देना था वो किस में देना था, मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में. ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इस पार्ट को मैं हटा दूं, कैलकुलेट करना है तो कर दो. ये क्या हो जाएगा, 0.3010 अपॉन दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट, 0.1229 और उसमें 20 जोड़ दो, तो 0.1249 नहीं 1249. हाँ, तो ये हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 10 एंड दिस इज मिनट, एंड हियर इट इज व्हाट टी हाफ. बस अब थोड़ा सा देख लीजिए, 3010 अपॉन 1249 इंटू 10 मिनट, एंड यू सी हियर, इसको कर दो 2, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 2498, तो ये आ जाएगा 552 बच जाएगा नहीं. अगेन कर दो इसको, तो 5520, सो इट विल बिकम व्हाट 0.4, सो 0.4 एंड ये कितना हो जाएगा 0.4 से, अगर 1250 रहता तो 5000 हो जाता, लेकिन 4 कम हो जाएगा तो 4, और इधर 5 जोड़ दो, तो 524 हो गया यहाँ पे. अब 524 को फिर से देखो तो 5240 हो गया, और 5240 हो गया तो फिर से ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 ही ना, और इनटू 10 मिनट्स, सो दिस विल बी व्हाट 24.4 मिनट्स के आसपास आ जाएगा. सो नियरेस्ट इंटीजर अगर लेना हो तो 24 ले लो, सो आंसर विल बी 24. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द pH at which MgOH twice KSP दिया हुआ है इसका begins to precipitate from a solution. देखो MgOH twice है तुम्हारे पास solid, and that will dissociate like this, Mg plus 2 aqueous plus 2OH minus aqueous. अब यहां पे क्या है, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg plus 2 to the power 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस टू द पावर 2, अगर ये वैल्यू इस KSP को एक्सीड कर जाए तो दैट विल बिकम व्हाट Q, एंड इफ Q इज ग्रेटर देन KSP, in that case equilibrium will move what, backward, and if equilibrium will move backward, in that case precipitation of MgOH twice will take place. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर एक इतना हम कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो प्रोडक्ट है अगर KSP से ज्यादा हो जाए तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा, बैकवर्ड, और अगर बैकवर्ड चला गया तो इसका मतलब MgOH twice का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हमें बस एक तरह से ऐसे कर लो कि इसको इक्वेट ही कर लेते हैं. अब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻11. Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1. ये कितना दिया हुआ है आपको
0.1 दिया हुआ है ना, सो दिस इज व्हाट योर 0.1 इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाट 10⁻11। ये जब वहां नीचे जाएगा तो 0.1, ऊपर जाएगा तो 10, तो ये 10⁻10 हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻10। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट विल बी 10⁻5। रूट कर लो इसका। इसका मतलब क्या है कि अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तुमने 10⁻5 से थोड़ा भी बढ़ाया, सो अगेन द प्रेसिपिटेशन विल व्हाट स्टार्ट। अब इससे देख लो, तो इससे POH निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन में pH पूछ रहा है ना, तो pH प्लस POH 14 होता है, तो pH विल बिकम व्हाट योर 14 माइनस 5, दैट इज व्हाट 9। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको ग्राफ दे रखा है यहां पे, और उसमें क्या बोल रहा है देखो, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट A and coming back to the same point by tracing the path A to B to C to A. Cyclic process है as shown in the diagram. The total work done in the process. देखो total work done तो क्या होगा, area enclosed, इसका जो area है, और यहां पे देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट द एरिया इनक्लोज्ड। ये एरिया अगर हम निकाल लें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। साइन, अगर साइन भी निकालना है तो साइन निकालना बहुत आसान है, हम उसको देखते हैं। पहले हम एरिया वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, राइट। तो यहां पे जो भी वर्क डन का मैग्नीट्यूड है वो एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया क्या हो जाएगा देखो, ये दिस व्हाट योर हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो तो हाफ इंटू 30 माइनस 10, दैट इज व्हाट 20। बट ये 20 क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 30 माइनस 10, अगेन 10, सॉरी 20, 30 माइनस 10 दैट इज व्हाट 20। और ये इसका यूनिट कितना दिया हुआ है, किलो पास्कल। सो दिस इज गिवन व्हाट, किलो पास्कल। अब क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 इंटू डेसीमीटर क्यूब है ना, सो वी नो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर को 1/10 मीटर लिख सकते हो, एंड 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर दैट इज व्हाट 1/1000 मीटर क्यूब, राइट। सो 20 डेसीमीटर क्यूब को ऐसे लिख लीजिए आप 20/1000, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, और किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लो इंटू 1000, एंड दिस इज व्हाट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब कहानी हमने क्यों की, हमें आंसर किस में निकालना है, जूल में। सो देखो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, और ये 400/2 दैट इज बिकम व्हाट 200, और मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, तो ये तो मीटर बन गया, न्यूटन डॉट मीटर जूल। सो मैग्नीट्यूड तो 200 जूल आ रहा है। अगर प्लस और माइनस भी चेक करना है तो देखो हम कर सकते हैं, कैसे, तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी। आई होप यू गॉट, जस्ट वी आर चेकिंग वेदर इट विल बी प्लस और माइनस। वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। सो इन दिस केस इफ यू सी, यहां से जब यहां जा रहे हैं हम, राइट, सो दिस इज द एरिया। एरिया हम हमेशा लेते हैं वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, ये एरिया है आपका। और इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये एरिया आपका पॉजिटिव है। अच्छा, सी से ए में वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, तो एक्सपेंशन वर्क क्या हो जाएगा 0, इसको छोड़ दो। और ए टू बी में जब जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसमें कौन सा एरिया होगा, ये वाला, येलो वाला, नहीं। सो इन दिस केस द वर्क डन इज बाय द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन में साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव इज व्हाट मोर, सो नेट वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द साइन ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट अनियम, अन मतलब 111 Rg, रोंजीनियम, राइट। सो then the element belong to nth group of the periodic table, the value of n is periodic, मतलब कौन सा ग्रुप होगा 11। देखो 104 से लेके 118 तक जो लास्ट के दो नंबर्स हैं, दैट विल बिकम व्हाट द ग्रुप, रदरफोर्डियम का 4th ग्रुप है, राइट। उसके बाद 105 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, लाइक दैट, ऐसे भी याद रख सकते हो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इट विल बिकम व्हाट 11th ग्रुप, वो कॉपर AgAu के नीचे आएगा Rg, राइट। This was question number. So value of n will become what? 11, right? Moving to the next one. The total number of molecular orbital formed from 2s. तो 2s से क्या बनेगा देखो, तो एक सिग्मा 2s स्टार बनेगा और एक सिग्मा 2s बनेगा, एंड 2p से बोल रहा है,
तो 2p से क्या बनेगा, सिग्मा 2p जेड स्टार, सिग्मा 2p एक्स स्टार, सिग्मा 2p वाई स्टार। तो 3 तो एंटी बॉन्डिंग हो गए। उसी तरह से सिग्मा क्या कर दिया मैंने, ये पाई होगा, सॉरी, दिस इज पाई स्टार एंड दिस इज पाई 2p एक्स स्टार, पाई 2p वाई स्टार। और यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई एंड देन व्हाट, सिग्मा 2p जेड। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पे कुछ ऐसा नहीं बोल रखा है उन्होंने, बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है। सो यू हैव टू कंसीडर बोथ बॉन्डिंग एज वेल एज व्हाट, एंटी बॉन्डिंग। तो 6 यहां से हो गए और 2 यहां से आ गए, तो टोटल कितने आ गए, 8। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, 8। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। On a thin layer chromatography plate, an organic compound moved by 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो सब्सटेंस है, वो कितना मूव किया है, 3.5 सेंटीमीटर, while the solvent move। तो एक रिटार्डेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहां पे जो सब्सटेंस तुम्हारा मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, एंड सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 0.7। द रिटार्डेशन फैक्टर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 0.7 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10⁻⁻1। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 7। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो ये देख सकते हो, यहां से आरएफ दिया हुआ है। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला में आरएफ का ये देखो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? आपने कर लिया होगा, आई एम श्योर। द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, CH3C double bond OH, that is what, ethanol, and the reaction is with what, semi carbazide। तो सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, देखो NH2, जिसका लोन पेयर प्योर है वो लेते हैं, NH एंड देन व्हाट, C डबल बॉन्ड O NH2, और यहां से वाटर निकाल दो। तो क्या बन जाएगा, देखो सेमी कार्बाजोन, C डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O NH2, and here it is what, CH3, and it is what, H। क्या पूछ रहा है वो, they are asking how many number of nitrogen atom is present। तो नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। So 3 will be the right answer for this question. Let's move to the next question, question number 28। 0.05 centimeter thick coating of silver is deposited on a plate of 0.05 meter square area। Okay, that means this much, ये surface area है 0.05 मीटर स्क्वायर, और यहां पे कोटिंग कितनी हुई है, 0.05 सेंटीमीटर की कोटिंग हुई है। थोड़ा यूनिट देखना पड़ेगा हमें, नहीं ठीक। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट, यहां पे डेंसिटी आपको दी हुई है। तो करना क्या है, देखो यहां जो भी सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया कितना है, 0.05 मीटर स्क्वायर है। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पे डेंसिटी मुझे सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो लेट्स कन्वर्ट दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 10⁴। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁴ आ जाएगा। ये तो तुम्हारा एरिया आया है, इंटू थिकनेस, दैट इज व्हाट, 0.05। तो यहां से अगर देखोगे तो ये कितना आ गया, ये 100 और 100 नीचे आया, वो 10⁴ से कट गया। तो दिस इज व्हाट बेसिकली 25 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज व्हाट द वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिटेड। डेंसिटी ऑफ एजी इतना दिया हुआ है, तो डेंसिटी अगर एजी का दिया हुआ है आपका, तो यहां से मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड निकाल लो। तो एम ऑफ एजी डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 7.9 इंटू 25 ग्राम, दैट इज व्हाट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड। हमें क्या निकालना था, एटम्स। तो एक बार मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी कितना हो जाएगा, गिवन मास, दैट इज वॉट एवर द मास इज डिपॉजिटेड, अपॉन व्हाट, मोलर मास। एजी का दिया हुआ है 108, और इससे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एजी निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एजी, तो इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल व्हाट योर 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 6.022 into 10⁻23. So just calculate it and you will get the right answer for this question. Moving to the next one. ये बैलेंस करना है आपको।
2MnO4 minus plus B minus, ये छोटा होगा C. This is what CH2O gives you XI2 plus YMnO2 plus ZOH minus. If the above equation is balanced with integer coefficients, the value of Z निकालना है, हमें बैलेंस करना है. देखो वैसे बेसिक मीडियम है तो I माइनस शुड गो टू व्हाट IO3 माइनस, बट एनीवे हम इसको बैलेंस करते हैं. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लगा देता हूँ. सो MnO4 माइनस विल गो टू व्हाट MnO2. पहले Mn को बैलेंस करो, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, तो इधर क्या कर देते हैं 2 वाटर ऐड कर देते हैं 2H2O. अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो इधर 4H प्लस तब ऐड करते हैं जब क्या होता एसिडिक मीडियम. ये तो है बेसिक मीडियम, तो ऐसे समझ लो कि 4H प्लस है तो 4OH माइनस भी ऐड हुआ होगा दोनों तरफ. H को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4H प्लस लिया, बट 4OH माइनस भी साथ में ऐड कर दिया, तो इधर में 4OH माइनस ऐड किया, और इधर जो 4H प्लस और 4OH माइनस था दैट विल गेट कंबाइंड एंड दैट विल बिकम व्हाट 4H2O. समझ में आया? नहीं. अगर नहीं आया तो समझो एक बार फिर से. मैं यहां पे 4H प्लस है तो मैंने 4H प्लस, लेकिन मीडियम तो बेसिक है तो मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, दोनों तरफ 4OH माइनस ऐड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं. और अब इसको क्या करके कंबाइन करके क्या लिख दिया 4H2O. नहीं, तो दिस विल बिकम व्हाट 4H2O. एक काम और करो, यहां पे देखो तो यहां 4H2O और यहां पे 2H2O है, तो नेट इधर क्या हो जाएगा प्लस 2H2O. ओके. अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं. बाकी बैलेंस हो गया. देखो Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 2 4 6, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे मतलब सॉरी 4, और यहाँ पे भी 4. चार्ज बैलेंस करते हैं. ये तो न्यूट्रल है, इसको हटा दें क्या, ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा. सो इसको थोड़ा एंड हियर इट इज व्हाट 2H2O. अब देखो चार्ज कितना हो जाएगा, इधर 1 माइनस है और इधर 4 माइनस है, तो जिधर रिलेटिवली नंबर लाइन में जिधर राइट हैंड साइड में जो नंबर हो उधर ही चार्ज ऐड करेंगे. ऑफ कोर्स हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो जिधर ज्यादा निगेटिव है उधर नहीं, जिधर कम निगेटिव है. सो दैट मीन्स हियर इट इज -1, इट इज -4, तो यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन. वैसे भी रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. I माइनस इज गोइंग टू व्हाट I2. ये तो सिंपल है, I2 है, पहले I को बैलेंस कर लो 2I माइनस, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से. तो ये क्या बन गया, ऐसे तो यहां से भी आंसर बोल सकते हो बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं. 4H2O, कहीं एक पूरा का पूरा कहीं कॉमन आ जाए कुछ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना. सो 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस, ऐसा होगा नहीं क्योंकि 3I2 आ रहा है. एनीवे देख लेते हैं. और यहां पे ये क्या हो जाएगा 2MnO2 एंड प्लस 8OH माइनस. लेकिन मैं कहूंगा डायरेक्टली 8 मत बोल दो, एक बार काउंट मतलब देख लो इसको, अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा हो तो. नहीं, जैसे P4 वाला एक क्वेश्चन है करना, P4 का जब PH3 और H2PO2 माइनस वाला करते हैं बैलेंस, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर आ जाता है, उसको फिर से हमें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है. तो एक बार कर लो. ये क्या हो जाएगा +6I माइनस, एंड देयर इट विल बी व्हाट 3I2. इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, 4 2 6 2 8, यहाँ पे 3 है, सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 m एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले. तो सोडियम एसिटेट का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, दैट इज 0.35 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000. इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मोल्स है, अगर मिलीमोल्स ml में लोगे वॉल्यूम तो मिलीमोल्स आ जाएगा. ये तो मोल्स आ गए. अब मास ऑफ CH3CONA करना है, सो यू नो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से. इसको बाई 4 कर देता हूं, इनटू मोलर मास कितना दिया हुआ है 82.02, राइट. सो जस्ट सॉल्व इट, यू विल फाइंड अराउंड आई थिंक 7 इज द आंसर. 7 point something आएगा, you can solve it, right? So this was your paper discussion. I hope you found this discussion useful. Thank you so much for watching.